Students, in the previous video lecture, we have covered the topic till how to find the periods, how to find the group, how to find the valency, valence electrons, nature of oxides and metals and non-metals. I hope that topic is clear to you. Okay. Now we are going to start with next topic of the chapter, that is the last topic, you can say trends in periodic table on modern periodic table, or you can say the periodicity in properties. The periodicity in properties. Now we know that the properties of elements mainly depend upon their electronic configuration. What does the properties of elements depend upon? It depends upon their electronic configuration. Now, electronic configuration change regularly. As you have seen, electronic configuration change hota jayega. As the atomic number increases, the electronic configuration increases. Atomic number 1, electronic configuration 1. Atomic number 2, electronic configuration 2. Electronic number 3, electronic configuration K shell, it has 2 electrons. L shell, it has 1 electrons. And so on, it gets changes. So as the electronic configuration change regularly along the period and down the group of the periodic table, therefore, the properties of the elements change across the period and down the group of the periodic table. So there are very quite few atomic and physical properties of the elements. At this stage, we describe the periodicity of the elements on the following properties across the period and the group. First is valency. What happens to the valency? Then next is atomic radius. What happens to the atomic radius? Next, metallic and non-metallic character. Next, nature of the oxide. And the last is chemical reactivity. Now, what is trend? Trends means change. As you say, this is trending now. Initially, that was trending. Trending means change. What is in the most change taking place? That we call it as a trend. So, what trend change take place in the modern periodic table according to this all factors that we will see. Now, in your textbook, only 3 factors have been explained, that is valency, atomic radius, metallic and non-metallic character. They have not explained you the nature of the oxide and chemical reactivity, but the question comes from this part. So, make sure you should do this thing also. Okay. Now, let us start. You can see this is the periodic table. So, what change I am seeing from left to right in a period? You know now, vertical columns are known as groups and horizontal rows are known as periods. Am I right? Vertical columns are known as groups and horizontal rows are known as periods. Okay. So, what changes does take place? We will see now. Left to right in a period, we will see the change from here to here, what changes take place, and from down the group, top to bottom. That is also known as down the group. So, let us see. First, valency. What is valency? What is valency? Tendency to gain or lose the electrons. That is known as valency. To complete its octet or duplicate to get stable. Stable होने के लिए हमें क्या चाहिए? Valency complete होनी चाहिए. What is valency? The tendency to lose or gain the electron to complete its state. Now, what happens in a group to the valency? In group, all the elements in the group show the same valency. Why all the elements in the group show same valency? What is the reason? Because all the elements of a group have same number of valence electrons. Group में valence electrons क्या होंगे? Same. तो valency भी क्या होगी? Same. जैसे I am talking about, मैं ग्रुप 1 की बात कर रही हूँ. ठीक है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की बात करती हूँ. तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स में हो जाएगा आपका कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? एक एग्जांपल ले लेती हूँ. Li, ग्रुप 1 का एग्जांपल ले लेती हूँ. Li, Na एंड K. चलो इतना लेती हूँ. और भी एलिमेंट्स है बट मैं 3 का एग्जांपल ले रही हूँ ग्रुप 1 के. इसका एटॉमिक नंबर 3 है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 1. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 और 1. इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 19. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 1. सो कैन यू सी उनके आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या है? 1 1. सो वैलेंसी भी क्या होगी? 1 1. सो डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन सेम. Why? Because they have the same number of valence electrons. I hope this is clear to you.
the reason is clear to you. Why the group wise elements has the valency same? Because they have same number of valence electrons. Now what happens in terms of period? In periods, the valency of the element in a period first increases and decreases. Now why it first increases? Because firstly group 1 they have 1 electrons, so they easily lose the electrons. Group 2 valency is 2, so they will again lose the electrons. Group 3 valency is 3, they will lose the electrons. So as you move तो वो क्या कर रहा है, easily 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है या रिलीज कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी 1 2 3 हो रही है, तो पहले इंक्रीज हो रही है, बट जैसे जैसे आप देखते हो तो आगे जा रहे हो तो उसकी टेंडेंसी क्यों डिक्रीज हो रही है? बिकॉज टेंडेंसी टू गेन इंक्रीजेस. अब जैसे 7 था 1 गेन कर रहा है तो 1 हो गया, आउटर मोस्ट में अगर 6 है तो कितने गेन करेगा? 2, तो डिक्रीज हो रही है ना, सो दैट इज वाई. ओके, सो व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स चेंज. ओके, now next we will see what is atomic size. What happens to atomic size from left to right, or you can say in a period when you move left to right, what happens to the atomic size, or you can say atomic radius भी बोलते हैं उसके, and what happens when you move down the group. Now first of all, what is the definition of atomic radius? The distance from the center of the nucleus to the outermost shell of electrons in an isolated atom of electrons. इसको as नहीं करना, ये जो as लिखा है उसको कट करके ऑफ कर देना, ठीक है. The distance from the center of the nucleus to the outermost shell of the electrons in an isolated atom is known as atomic radius. As I can say, this is your two atoms bonded to each other. So इनके बीच में जो distance है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसका एटॉमिक रेडियस. दिस ओके, आउटरमोस्ट शेल तक. और यू कैन से हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू सिमिलर एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर इज ऑल्सो नोन एज एटॉमिक रेडियस. और सिंपल ये बोल सकते हो कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस और उसके सेंटर ऑफ आउटरमोस्ट शेल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? आपका एटॉमिक रेडियस. ओके, next what happens to atomic radius that we will see in a period. What happens? The atomic size decreases. Radius size same thing, the atomic size decreases in going from left to right in a period. Atomic size क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. क्यों डिक्रीज हो रही है? So what is the reason? Because the number of electrons in the atom increases. अब एटम्स इंक्रीज हो रहा है तो साइज भी बढ़नी चाहिए ना. आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, एटम्स मतलब मैम एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, तो उसका एटॉमिक साइज भी बढ़ना चाहिए, बट डिक्रीज क्यों हो रहा है? सो लेट अस सी. increases in going left to right in a period. So the added electrons enter the same shell due to increase in nuclear charge. Now what is nuclear charge? It is a tendency to attract the electrons towards the nucleus. Tendency to attract the electrons towards the nucleus. आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैज नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस हैज पॉजिटिव, प्रोटॉन्स है उसमें और न्यूट्रॉन्स है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है. अब प्रोटॉन्स के पास पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज में होते हैं. तो जो प्रोटॉन्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं. और अब मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर ये एटॉमिक रेडियस है, एटम है, ये न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन्स उसी शेल में एंटर होते जाते हैं पीरियड्स में, सेम शेल में. तो अट्रैक्शन क्या हो जाती है? अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, तो साइज क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है ना. ठीक है, सो ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स पुल टुगेदर towards the nucleus with greater attractive force. So as a result the electronic shell shrinks and the atomic size decreases. I hope this is clear to you. ठीक है, ये आप देख सकते हो. यहाँ पे मैंने यहाँ पे पीरियड दिया हुआ है, पीरियड सेकेंड और पीरियड थर्ड का एग्जाम्पल. सो इसमें आप क्या देख रहे हो? लिथियम आपका सेकेंड पीरियड का है और सोडियम वाला थर्ड पीरियड. सो एज यू आर मूविंग लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. क्यों डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं. और अट्रैक्शन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है, सॉरी प्रोटॉन्स नहीं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहा है. तो उसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं? अट्रैक्शन क्या हो रहा है? उनके बीच में बढ़ रहा है. और
इलेक्ट्रॉनिक शेल क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज. नाउ व्हाट हैपेंस इन अ पीरियड, in a group, atomic size increases while growing from top to bottom in any group. क्यों increase हो रहा है, what is the reason? Because when we go down the group, at each new element a new shell of electron is added to the atom. This increases the size of atom at each new element. मतलब अब यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यू शेल इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है, वो शील्ड हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ टीचर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, फर्स्ट बेंच के सामने, अट्रैक्शन, वो फर्स्ट पीरियड है, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में होते हैं, बट वही लास्ट बेंच में मैम डायरेक्ट नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि आगे के जो पीछे वाले बेंचेस है, लास्ट बेंचेस के आगे 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 वाले क्या कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं. तो मैम इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियस, एज आई एम सेइंग यू ओवर हियर, कि आपके क्लास में बेंचेस है, ठीक है, बेंचेस है, स्टूडेंट्स आर सिटिंग ओवर हियर. Students are sitting over here. Okay. Ma'am is standing over here. ठीक है, अब ये पीरियड्स हो गए, डाउनवर्ड्स क्या हो गया, ग्रुप. तो मैम की नजर डायरेक्ट स्टूडेंट्स पे जाएगी, अट्रैक्शन डायरेक्ट होगा ना, इनका डायरेक्ट होगा कॉन्टेक्ट, तो ये लोग इजीली बच पाएंगे नहीं. वही मैम को थर्ड बेंच पे अगर कोई बच्चा कुछ और भी काम कर रहा है तो डायरेक्ट नहीं होगा, मैम को उधर उसके पास जाना पड़ेगा. सो वो आगे के बेंचेस से क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट हो रहे हैं दो बेंचेस से, तो डायरेक्ट जो न्यूक्लियस का चार्ज है वो पूरा इस पे जा रहा है. नो, इट इज गेटिंग प्रोटेक्टेड बाय दिस एंड दिस. तो शील्डिंग इफेक्ट आ रहा है उनके पास, वो शील्ड हो रहे हैं, इसलिए क्या हो जाता है, डायरेक्ट न्यूक्लियस चार्ज जो है वो पूरा लास्ट एटम तक नहीं पहुंच रहा, बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू शेल. दैट इज दिस शेल एंड दिस शेल. समझ आया? सो दैट इज द रीजन क्या है कि when we go down the group, at each new element a new shell of electrons is added to the atom. So this increases size of the atom at each new element due to group. Or you can say the nuclear charge attraction is you can say that nuclear charge do not directly contact to the atom. ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको भी दे रही हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 17 का. एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, सो Li इज द स्मॉलेस्ट एटम एंड दिस इज द लार्जेस्ट एटम, एंड हियर F इज द स्मॉलेस्ट एटम एंड I इज द लार्जेस्ट एटम. नेक्स्ट इज थर्ड इज मेटेलिक कैरेक्टर. व्हाट हैपेंस टू मेटेलिक कैरेक्टर? मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप. नाउ व्हाई इट इंक्रीजेस? व्हाट इज मेटेलिक कैरेक्टर? कब बोल सकते हो मेटल है? The one which easily loses the electrons are known as metals, and the one which do not easily lose the electrons are known as non-metals. जो या फिर आप बोल सकते हैं the one which gains the electrons are known as metals, non-metals, and the one which loses the electrons are known as metal. So metallic character of an element in a group increases as we go down the group. Why? And what happens to non-metallic character भी देख लेते हैं in a group. So non-metallic character of elements in the group decreases as we move down the group. ठीक है, what is the reason? Can anyone just think what must be the reason? metallic character क्यों increase हो रहा है down the group और non-metallic character क्यों decrease हो रहा है down the group? Now I am saying you example देख, example के थ्रू आपको समझा रही हूँ. Metallic character of an element is related to the electron losing tendency. So the element which has greater tendency to lose electrons is called metallic. So metallic character increases in down the group because the size increases. अब size इंक्रीज हो रही है तो इजीली वो मेटल्स, इजीली वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा. ठीक है, जैसे एग्जांपल बोल रहे हो, अगर कोई बच्चा, छोटा बच्चा और बड़े बच्चे का एग्जांपल ले रही हो. छोटे बच्चे को अगर आप चॉकलेट दे रहे हो और बड़े बच्चे को भी चॉकलेट दे रहे हो, तो छोटे बच्चे से चॉकलेट लेना क्या इजीली होगा? नहीं, वो आपको इजीली चॉकलेट नहीं देगा. वैसे ही बड़े बच्चे को अगर आप समझाओगे कि आई नीड इट, आई रिक्वायर्ड इट, तो वो इजीली आपको दे देगा. कि उसकी साइज ज्यादा एफर्ट्स लगे आपको? नहीं. ठीक है, सो एज द साइज इंक्रीजेस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो increases. So metallic character down the group increases. As the size decreases, so tendency to lose the electrons also decreases. So therefore left to right non-metallic metallic character decreases and down the group metallic character increases. ठीक है, so period wise क्या होता है?
सेम मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस बिकॉज साइज छोटी हो जाती है तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं करता, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसलिए इंक्रीज हो जाता है क्योंकि साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स वो इजिली ले लेता है. ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये देखो एग्जाम्पल पीरियड्स का एग्जाम्पल, पीरियड 2 एंड पीरियड 3. मेटल से कौन सा कैरेक्टर हो रहा है, नॉन मेटल्स बन रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है. मेनली ये टेंडेंसी टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज योर केमिकल रिएक्टिविटी. सो द केमिकल रिएक्टिविटी इज मेनली properties of an elements are largely governed by its valence electrons, valence electrons. That is why all elements of group show similar properties because they have same valence electrons. However, there is a slight variation in the reactivity of the elements in a group. For example, the metallic elements, for metallic elements, the reactivity of alkyl metals follows the order. ये order देख रहे हो आप, ठीक है, ये down the group reactivity increases, and for the non-metallic character, non-metallic elements, the reactivity decreases in going from down the group. As you can say, reactivity decrease हो रहा है. सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, आयोडीन, और सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या है, फ्लोरीन. बिकॉज एज अ रिजल्ट एटम्स ऑफ दिस शो नो टेंडेंसी टू लूज और बिकॉज द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. मतलब मेटल ऑक्साइड्स डायरेक्ट भी बोल सकते हो. मेटल ऑक्साइड जो मेटल होगा, और अगर आप आइडेंटिफाई करे हो मेटल है कि नॉन मेटल है, तो ऑक्साइड्स का नेचर मतलब उसका कंबाइन करने का ऑक्सीजन के साथ टेंडेंसी. सो अगर वो मेटल है तो मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट इन नेचर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर. सो लेफ्ट टू राइट इन अ periodic table, acidic nature increases and basic nature decreases, and down the group acidic character nature decreases and basic character increases. क्योंकि down the group क्या हो रहा है, metals easily बन रहे हैं ना, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो बेसिक नेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो उससे भी आप इसको कंपेयर कर सकते हो. यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो थर्ड पीरियड का. एलिमेंट्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, एलिमेंट्स फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. बिकॉज यहाँ से यहाँ आपका कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर. तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं नेचर में, दे आर एसिडिक. एंड डाउन द ग्रुप कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर, मेटल्स की टेंडेंसी, सो दे आर बेसिक. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ओके, सो दिस इज योर जस्ट रिकैप ऑफ द होल थिंग. ठीक है, अब इसमें से आप पूछोगे मैम आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है. आयोनाइजेशन एनर्जी इन द सेंस टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, मतलब कितना एनर्जी चाहिए आपको इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए. तो लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है. क्यों, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है. साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियस के पास ज्यादा अट्रैक्शन होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस की तरफ बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं. सो आप जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस. एंड डाउन द ग्रुप उसका रिवर्स. बट ऐसे टॉप टू बॉटम की सीरीज में अगर उसको उल्टा करके देख लेंगे. समझ में आया? अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे ग्रुप में पूछो, और यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू.